ناظرین یہ تھی سری ہیڈلائنز نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار سے ان کی صحت کے حوالے سے پوچھا۔ وزیر اعظم کا عثمان بزدار کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آئندہ ہفتے لاہور کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار سے ان کی صحت کے حوالے سے بھی پوچھا۔ وزیر اعظم کا عثمان بزدار کی جلد صحتیابی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے لاہور کا دورہ کریں گے۔ یہ ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان۔ وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار سے ان کی صحت کے حوالے سے بھی پوچھا ہے۔ وزیر اعظم کا عثمان بزدار کی جلد صحتیابی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں قذافی بٹ، آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، پرائم منسٹر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹیلی فون کیا اور کرونا سے صحت یاب ہونے پر انہیں مبارکباد بھی دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اور وزیر اعظم نے چونکہ آج لاہور آنا تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ لاہور، وزیر اعلیٰ کو یہ بھی بتایا کہ وہ اگلے ہفتے لاہور آئیں گے تو جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان پر ان کو بریفنگ بھی دی جائے گی۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کی جانب سے پوچھنے پر صحتیابی پر پوچھنے پر ان کی نیک خواہشات کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے قذافی بٹ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیلی فون کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ٹیلی فون کیا ہے اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھا ہے، جبکہ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آئندہ ہفتے لاہور کا دورہ بھی کریں گے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے آپ کو کہ وزیر اعظم نے عثمان بزدار سے ان کی صحت کے حوالے سے پوچھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے لاہور کا دورہ کریں گے اور تمام تر جو پالیسیز ہیں، سیاسی جو نقل و حرکت ہے، صورتحال ہے، اس پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات چیت کی جائے گی۔ جتنے پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں اس پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بریف کریں گے، جبکہ مختلف جو پروجیکٹس ہیں جن کی افتتاحی تقریب کا بھی انعقاد کیا جا سکتا ہے، مختلف جو انڈر گوئنگ اور انڈر پروسیس کچھ پروجیکٹس ہیں ان پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار سے ان کی صحت کے حوالے سے بھی پوچھا ہے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آئندہ ہفتے دورہ کریں گے لاہور کا، اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مختلف امور ہیں جو کہ اس دورے کے دوران نہ صرف زیر بحث لائے جائیں گے بلکہ مختلف پروجیکٹس ہیں اور مختلف منصوبے ہیں جن پر باقاعدہ طور پر بریفنگ دی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے، جو کہ زیر بحث لائے جائیں گے۔ سابق سی سی پی او عمر شیخ کے جانے والے غیر ضروری تبادلے واپس۔ ایس ایس پی ایڈمن نے 280 اہلکاروں کے تبادلے واپس کر دیے ہیں۔ انسپیکٹرز کو سیکیورٹی ڈویژن سے واپس، اور آپ کو بتائیں کہ 5 انسپیکٹرز کو سیکیورٹی ڈویژن سے واپس آپریشن ونگ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ 12 سب انسپیکٹرز میں سیکیورٹی اور انویسٹیگیشن سے آپریشن واپس، 18 اے ایس آئی، 43 ہیڈ کانسٹیبلز بھی واپس بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ 23 کانسٹیبلز واپس اپنی جائے تعیناتیوں پر لگا دیے گئے ہیں۔ اس تمام تر معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق سی سی پی او عمر شیخ کے جانے والے غیر ضروری تبادلے واپس کر دیے گئے ہیں اور ایس ایس پی ایڈمن نے 280 اہلکاروں کے تبادلے واپس کر دیے۔ 5 انسپیکٹرز کو سیکیورٹی ڈویژن سے واپس آپریشن ونگ تعینات کر دیا گیا ہے، 12 سب انسپیکٹرز میں سیکیورٹی اور انویسٹیگیشن سے آپریشن واپس کر لیے گئے ہیں، 18 اے ایس آئی اور 43 ہیڈ کانسٹیبلز بھی واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ 23 کانسٹیبلز واپس اپنی جائے تعیناتیوں پر لگا دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق سی سی پی او عمر شیخ کی جانب سے جو تبادلوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے وہ بھی کینسل ہو چکے ہیں، اور کو اپڈیٹ کریں کہ سابق سی سی پی او عمر شیخ کے جانے والے غیر ضروری تبادلے ہیں جنہیں واپس کیا گیا ہے، اور مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایس ایس پی ایڈمن نے 280 اہلکاروں کے تبادلے واپس کر دیے، انسپیکٹرز کو سیکیورٹی ڈویژن سے واپس آپریشن ونگ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ 12 سب انسپیکٹرز میں سیکیورٹی اور انویسٹیگیشن سے آپریشن واپس دیے گئے، 18 اے ایس آئی، 43 ہیڈ کانسٹیبلز بھی واپس دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس حوالے سے مزید بتائے کہ 230 کانسٹیبلز واپس اپنی جائے تعیناتیوں پر لگا دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن تبادلوں کا جاری کیا گیا تھا سابق سی سی پی او کی جانب سے، عمر شیخ کی جانب سے، اسے کینسل کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ایڈمن نے 280 اہلکاروں کے تبادلے ہیں جنہیں واپس کر دیا ہے، اور 5 انسپیکٹرز کو سیکیورٹی ڈویژن سے واپس آپریشن ونگ میں تعینات کر دیا گیا ہے، 12 سب انسپیکٹرز میں سیکیورٹی انویسٹیگیشن سے آپریشن واپس، جبکہ 18 اے ایس آئی، 43 ہیڈ کانسٹیبلز بھی واپس کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ 230 کانسٹیبلز واپس اپنی جائے تعیناتیوں پر
लगा दिए गए हैं। इस तमाम तर मामले के वाले साहब को बताएं कि 203 कांस्टेबल्स वापस अपनी जाए तैनातियों पर लगा दिए गए हैं। ये मामला जिसके वाले से आपको अपडेट करें कि साबिक सीसीपी उमर शेख के जाने वाले गैर ज़रूरी तबादले वापस कर दिए गए हैं। एसएसपी एडमिन ने 280 एहलकारों के तबादले वापस कर दिए। हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक, साबिक सीसीपी उमर शेख ने जो तबादले किए थे वो वापस कर दिए गए हैं, क्या वो गैर ज़रूरी तबादले थे? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सीसीपी उमर शेख की जानिब से ये पॉलिसी बनाई गई थी कि लाहौर में तमाम जो डिवीजन हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन या सिक्योरिटी डिवीजन, इसमें जो एहलकार 2 साल से ज़्यादा अरसे से तैनात थे उनके तबादले कर दिए गए थे और ये 1000 से ज़्यादा तबादले थे। लेकिन अब इसमें जो है वो 280 ऐसे एहलकार और अफसरान के तबादले वापस किए गए हैं जो गैर ज़रूरी करार दे दिए गए हैं, जिनमें 5 इंस्पेक्टर हैं जो सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात हैं, उनको ऑपरेशन विंग में तैनात किया गया। इसी तरह सब इंस्पेक्टर हैं जो सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन विंग में वापस ऑपरेशन में भिजवाए गए हैं। 18 ASI, 43 कांस्टेबल हैं और 203 कांस्टेबल वापस अपनी जगहों पे तैनात हैं कर दिए गए हैं जो जहाँ पे वो पहले तैनाती उनकी थी। तो इसमें अब यही कहा जा रहा है कि जो उमर शेख की जानिब से जो गैर ज़रूरी तबादले किए गए थे वो तमाम के तमाम जो हैं ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। और इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पहले जो SHO या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करवाए थे उनके तबादले भी वापस हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जो ट्रांसफ़र तबादलों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि SPCT फराज अहमद की सरबराही में पुलिस का फ्लैग मार्च और फ्लैग मार्च में SDPOs और SHOs ने शिरकत की है। थाने की गाड़ियां भी फ्लैग मार्च में शामिल हैं। फ्लैग मार्च भाटी गेट से शुरू किया गया और लोअर मॉल, सेक्रेटेरिएट, दाता दरबार, सर्कुलर रोड में फ्लैग मार्च किया गया। शालम चौक, दिल्ली गेट, लारी अड्डा, मीनार पाकिस्तान में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च मीनार पाकिस्तान, पीर मक्की से होता हुआ भाटी चौक इख्तिताम पजीर हुआ। डॉल्फिन, पीरू थाने की गाड़ियाँ फ्लैग मार्च में शामिल हैं और इस फ्लैग मार्च के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि डॉल्फिन स्क्वाड भी इस फ्लैग मार्च में शामिल है, पुलिस की गाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ भी इस फ्लैग मार्च में शरीक हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि SPCT फराज अहमद की सरबराही में पुलिस का फ्लैग मार्च में SDPOs और SHOs ने शिरकत की। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कहाना में इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। 8 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला और कोई नहीं, बच्चे का भाई निकला। मुलजिम को सगे भाई फैजान ने सर में बोतल और ईंट मारकर कत्ल किया है। पुलिस की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, जानते हैं फ़खर इमाम से जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। फ़खर, बताइएगा। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कमाहा के इलाके के एक रिहायशी 8 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी है वो एक निश्तर कॉलोनी के नाले में फेंकी गई थी जो कि गुज़श्ता रोज़ मिली थी। इस हवाले से जो है पुलिस का कहना है कि इस हवाले से पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और जो लाश है वो वर्षा के हवाले भी कर दी गई थी। अब जो है पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उससे तहकीकात मज़ीद इस हवाले से जारी हैं। जो बच्चे के अहले खाना हैं, ख़ास तौर पर वालदा हैं और मज़ीद अहले खाना है, अहले मोहल्ला हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो इंसाफ की अपील कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो वालदा हैं उनसे बात करते हैं। माजी, आप बताएं कि कब से आपका जो बच्चा है वो लापता हुआ था? मेरा बच्चा परसों गया वा, बस इतने दुकान से चीज़ लैन गया ही वापस नहीं आया, कोई चुक के लै गया। पर सारी रात असं लभते रहे, नहीं लभा। कल ओदी डेड बॉडी लभी 3 बजे तक, वो भी पुलिस ने फ़ोन किया वा। पुलिस ने की तुहानू रिस्पॉन्स दिता है? पुलिस ने मुलजिम के हवाले नाल तुहानू कोई दस्सिया? कुछ नहीं दस्सिया, सानू कोई खबर नहीं है। साडी कोई किसी ना कोई लागतबाजी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। बस मेरा बच्चा अगवा होया है, उन्होंने मार दिता, डेड बॉडी मिली है। मैनू इंसाफ चाहिए अपने बच्चे लिए। बस मेरी इतनी अपील है, मैनू इंसाफ चाहिए, मेरे इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, मजीद कुछ रिश्तेदार बच्चे के मौजूद, आप बताएं क्या मुतालबा करते हैं आला हुकाम से? देखो, वज़ीर आला से ना हमारी यही अपील है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ जो भी पकड़ा जाता है इंसाफ उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। ये मासूम हमारा बच्चा था, ठीक है ना, कभी किसी से उसने बात की है ना करता है, घर से निकलता है सिर्फ इधर तक आता है। साईं लोग था वो,
परसों से लापता है। कल उसकी शामी 3:30-4 बजे ना पता चला कि उसकी लाश मिली है, हमारे सुपुर्द कर दी गई। उसको हमने रात 12 बजे दफना दिया। वज़ीर आला से यही हमारी अपील है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बिल्कुल इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं अहले खाना। एक और यहाँ पर केस था जो कि इनके ही हमसाए हैं और उनका तकरीबन 5 माह पहले उनका बच्चा जो है लापता हुआ था, जो कि आज तक नहीं मिल सका। इनसे भी बात करते हैं। तमाम बहुत शुक्रिया आपका। हायर एजुकेशन कमीशन में भी करप्शन का मुबैना स्कैंडल सामने आ गया। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को चार्टर देने के हवाले से रिश्वत वसूल की गई। और आपको बताएं कि केम फाउंडेशन ने रिश्वत वसूली के सबूत सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को पेश कर दिए। PHEC के डायरेक्टर नुमान मकबूल राव ने 3 लाख वसूल किए, ये खत में मेंशन किया गया है, जबकि नुमान मकबूल ने इंस्टीट्यूट को जल्द चार्टर दिलाने का वादा किया। खत का ये मतन है। नुमान मकबूल ने 3 एक साथ में 2 लाख रुपए वसूल किए। खत का ये मतन है। मजीद खत के बारे में जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक केम फाउंडेशन की तरफ से एक खत लिखा गया है महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि उन्होंने अपने एक इंस्टीट्यूट के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करवाना था। महकमा जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, लेकिन वहाँ पर एक जो तैनात है डायरेक्टर नुमान मकबूल राव, जिनका नाम लिखा गया है इस खत में कि उन्होंने 3 लाख रुपए के बस उनको ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया। तो ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेकिन अब इस पर जो खत लिखा गया महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो दूसरी तरफ महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि जो इस खत की बुनियाद पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो अब इस पर इंक्वायरी ज़रूर करेंगे और इसके लिए बाकायदा मरासला जो है वो महकमा हायर एजुकेशन कमीशन के हुकाम को बाकायदा तौर पर साल कर दिया गया है कि फौरी तौर पर आगाह किया जाए क्या आप जो पैसे लेकर एक यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें हकीकत कितनी है। अब इस पर हायर एजुकेशन के हुकाम जो है उनका कहना है कि वो अब इस मामले पर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जो केन फाउंडेशन के जो सरबराह हैं, उनकी जो टीम मेंबर हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और अपने जो डायरेक्टर हैं नुमान राव, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको भी बुलाकर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्या उन्होंने कितने पैसे वसूल किए ये सर्टिफिकेट इशू करने के। और अगर ये बात साबित हुई तो डायरेक्टर नुमान के खिलाफ फौरी तौर पर जो पीडी एक्ट के तहत और कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामी, तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। सालिसी काउंसिल्स के इख्तियारात का मामला जू का तू है। महकमा बल्दियात ने ताहाल सालिसी काउंसिल्स के इख्तियारात को जोन की सतह तक मुंतकिल नहीं किया। इस हवाले से आपको बताएं कि अभी तक ये इकदाम नहीं उठाया गया है। इस बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो खबर आप तक पहुंचाएंगे वो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक करने का बड़ा स्कैंडल। मुल्जिम मोहम्मद अब्दुल्ला 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। सीनियर सिविल जज अब्बास रसूल ने मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत। मुल्जिम BBSC में बतौर असिस्टेंट तैनात है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से इस मौका पर यह भी बताया गया कि मुल्जिम के साथ मजीद मुल्जिमान भी मुलव्वस हैं। मुल्जिम ने BBSC के पर्चे लीक किए हैं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम ने पासवर्ड लगाकर उम्मीदवारों के रिजल्ट्स भी तब्दील कर दिए। अपडेट करें आपको इस स्कैंडल के हवाले से। और मुल्जिम मोहम्मद अब्दुल्ला को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन रुल गए। महकमा तब्दील करने से मुलाजमीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जबकि ग्रेड 1 से 15 के मुताबिक मुलाजमीन की टाउन में ड्यूटीज लगाई गई हैं। टाउन से ड्यूटियां तब्दील करके MCL में भेज दिया गया और MCL ने भी मुलाजमीन को रखने से इनकार कर दिया है। मुलाजमीन को वापस पेरेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म पेरेंट डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने रखने से इनकार कर दिया। मुलाजमीन का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर का रुख मगर ताहाल सुनवाई न हो सकी। मुलाजमीन में साजिद रईस SDC, मोहम्मद अशरफ SDC शामिल हैं और मोहम्मद नादिर SDC, मोहम्मद इकबाल जूनियर क्लर्क, अब्दुल गफार जूनियर क्लर्क शामिल हैं। उमर हयात जूनियर क्लर्क, गुलाम असगर दफ्तरी समेत दीगर मुलाजिम भी इसमें शामिल हैं। 20 साल हो गए हमें कॉरपोरेशन में काम करते हुए। अब जब इन्हें ज़रूरत नहीं रही, इन्होंने हमें निकाल के बाहर, ना जिस महकमे से आए थे वहाँ पोस्ट है, ये भी लेने को तैयार नहीं, ना वो लेने को तैयार है। तनख्वाह रुल जाएगी, नेक्स्ट बजट तक 6 महीने हमें धक्के खाने पड़ेंगे तनख्वाह के लिए। आप सरकारी मुलाजमीन हैं? जी बिल्कुल, हम सरकारी पब्लिक हेल्थ की मुलाजमीन हैं। और ये आज इन्होंने हमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब में देना, ये जो स्पेशल सेक्रेटरी साहब थे इन्होंने, कि नहीं जी आज हमारी तरफ से आप फारिग हैं। अब बताएं हम कि कहाँ जाएँ, किससे अपनी मज़ीद दिनों की तनख्वाह कहाँ से लें? पब्लिक हेल्थ में हमें उन्होंने रिप्रिएट कर दिया है, टोनों में डाल दिया था।
उधर सासी काउंसिल्स के इख्तियारात का मामला झूंगा तो महकमा बल्दियात ने ताहाल सासी काउंसिल्स के इख्तियारात को जोन की सतह तक मुंतकिल ही नहीं किया है और तलाक और खुला के ज़ेर इल्तबा केसेस की तादाद 6135 तक जा पहुंची है। शहरी फील्ड ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। राहुल चार हुसैन से जान लेते हैं। राहुल चार हुसैन बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में 107 फील्ड ऑफिसेज बनाए गए 9 जोन्स हैं और हेडक्वार्टर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। लेकिन आपको ये बताएं कि अभी तक लाहौर शहर में डाइवोर्स केसेस और खुला के जो केसेस हैं उनके हवाले से जो पावर्स हैं वो डेलीगेट नहीं की गई। कमिश्नर लाहौर की जानिब से सेक्रेटरी बल्दियात को ये मरासला जारी किए हुए भी 3 माह गुजर चुके, लेकिन अभी तक अथॉरिटी डिसाइड नहीं हो सकी। तौर पर 6135 खुला और तलाक के जो केसेस हैं वो अब तक दरख्वास्तें पेंडिंग है, जबकि अगर बात की जाए सिर्फ डाइवोर्स केसेस की तो उनकी तादाद 3586 और खुला के केसेस की जो तादाद है वो 2549 है। तो जोन वाइज जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें अल्लामा इकबाल जोन में जो दरख्वास्तों की पेंडेंसी है वो आपके बताएं कि 629 तलाक के केसेस की पेंडेंसी है, जबकि 580 ऐसे केसेस हैं जो खुला के लिए दरख्वास्तें दायर की गई लेकिन उन पर फैसला नहीं हो सका। ताम अब इस हवाले से पेंडेंसी मुसलसल बढ़ती जा रही है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि फील्ड ऑफिस की जानिब से ये सालसी कौंसिल ने ये लेटर जारी करना होता है कि या खुला का फैसला जो है वो करना है। बहुत शुक्रिया राहुल चार हुसैन। शहर लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर है। शाही कला में मौजूद शाही किचन को रेस्टोरेंट में तब्दील करने का फैसला। शहरी मुगलिया दौर के फन तामीर में बैठकर अब लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। जी बिल्कुल, आपको इसी हवाले से बता रहे हैं कि शहर लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि शाही कला में मौजूद शाही किचन को रेस्टोरेंट में तब्दील करने का फैसला किया गया है और शहरी मुगलिया दौर के फन तामीर में बैठकर अब लजीज खाबों से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। अहम फैसला किया गया है शाही कला में मौजूद शाही किचन को रेस्टोरेंट में तब्दील करने का ये अहम फैसला है और शहरी मुगलिया दौर के फन तामीर में बैठकर अब लजीज खाबों से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अच्छी खबर है, शहर लाहौर के बासियों के लिए शाही कला में मौजूद शाही किचन को रेस्टोरेंट में तब्दील करने का फैसला किया गया है। शहरी मुगलिया दौर के फन तामीर में बैठकर अब लजीज खाबों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। साथ ही साथ बादशाही मस्जिद को भी देख सकेंगे और इन खूबसूरत इमारतों में जो कि तारीख़ी इमारतें हैं उनको देख भी सकेंगे और ख्वाबों को भी इंजॉय कर सकेंगे। आपको बताएं कि शहर लाहौर के बासियों के लिए एक अच्छी खबर है। शाही कला में मौजूद शाही किचन को रेस्टोरेंट में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है और शहरी मुगलिया दौर के फ़न तामीर में बैठकर अब लजीज ख्वाबों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। और बड़ी देर से ये फैसला बीच में लटका हुआ था और इस वक्त आपको बताएं कि शहर लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर है। शाही कला में मौजूद शाही किचन को रेस्टोरेंट में तब्दील करने का फैसला, इस पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। शहर के बासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि लाहौर फोर्ट में जो शाही किचन मौजूद था, जिसे किसी दौर में मुगलिया ख़ानदान यहाँ पर खाना खाया करते थे और यहाँ पर उनके लिए खाना तैयार होता था, अब लाहौर शहर के बासी भी यहाँ पर बैठकर लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इस हवाले से 2017 में एक रिट पिटीशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि ये मुगलिया विरसा है और इसको रेस्टोरेंट में तब्दील करना जो है वो कानूनी नहीं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया और ये कहा कि लाहौर फोर्ट जो है कानून में इस हवाले से कोई भी शिक मौजूद नहीं जिसमें वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को मुमानियत हो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट का क़याम नहीं किया जा सकता। तो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद बाकायदा तौर पर जो शाही किचन है इसकी मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल कर दिया गया है और इसको बहाल कर दिया गया है। सफाई सुथराई के इंतजाम भी यहाँ पर मुकम्मल कर दिए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन इमरान सिद्दीकी आपको दिखा सके तो ये शाही किचन का एरिया है तमाम, जिसको रेस्टोरेंट में तब्दील ख्वाबों के शौकीन होते हैं वो यहाँ पर बैठकर ज़बरदस्त किस्म की इन्वायरमेंट में बैठकर तारीख़ी इमारात में बैठकर जो है वो लजीज खानों से महजूज हो सकेंगे। यहाँ पर तमाम सफाई सुथराई का अमल जो है उसको वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया है। सफाई सुथराई मुकम्मल है। इससे कबल यहाँ पर जो दीगर कूड़ा वगैरह और इस समेत झाड़ियाँ और गंद मौजूद था जिसको मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया गया है
ہے اور شاہی کچن کو ایک دفعہ پھر سے بحال کر دیا گیا ہے. اب اس شاہی کچن کو ریسٹورنٹ میں تبدیل کیا جائے گا جہاں پر لاہوری بیٹھ کر کھلے ایریا میں جو ہے وہ لذیذ کھانوں سے محظوظ ہوں گے اور اس کو اب ریسٹورنٹ میں چینج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ارد گرد اچھی عمارات موجود ہیں, عقب میں بادشاہی مسجد موجود ہے, مینار پاک موجود ہے اور اس کے بیچوں بیچ یہ شاہی کچن موجود ہے. اب ریسٹورنٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہت شکریہ عثمان علی.